Hello friends, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on multimedia authoring tools. Dear friends, I am preparing this video lecture based on your feedback and your request, because some of your friends requested me to prepare this video because this is one of the important topic in second unit of multimedia. Dear friends, I am preparing this video based on SBT syllabus for the diploma course of computer science and engineering. So, now let us start with our topic multimedia authoring tools. So, what do you mean by multimedia authoring tools? In this, I am going to see the classification of multimedia authoring tools. I am not going to see the features here of multimedia authoring tools, but my main intention to prepare this video to give more emphasis on the classification of the multimedia authoring tools, because in the last video lecture I already cover fully the features of the multimedia authoring tools, but in this video lecture my more attention to emphasize the classification of the multimedia authoring tools. But before touching that point, I just want to give the small introduction about the definition and features. So, multimedia authoring tools. What do you mean by multimedia authoring tools? So, definition says that it is a process. Multimedia authoring is a process which helps to assemble all the different multimedia components in a single stream of information with the help of a multimedia software. समझिएगा इस बात को. Multimedia authoring is a process. क्या है? हमारा एक process है which helps to assemble different types of multimedia elements like text, audio, images, animation, video as a single stream of information. That means we are going to assemble all the multimedia element or component in a single stream of information with the help of some multimedia authoring software. And this multimedia authoring softwares are available in the market, so we can easily get that software and we are able to do the multimedia authoring process. So, multimedia authoring tools क्या होता है? So, multimedia authoring tools give a integrated environment platform. We can say that multimedia authoring tools give a integrated platform for joining together the different element of the multimedia production. So, multimedia authoring tools provide a integrated platform where we are able to join together all the multimedia components for the production of multimedia project. Clear? Third point says that it gives the framework for organizing and editing the components of a multimedia project. So, क्या करता है? It gives the framework for organizing and editing the components of a multimedia project. ठीक है? And the last point says that it enable the developer to create interactive presentation by combining all the components of the multimedia. So, these are the basic points under the definition of the multimedia authoring process and tools. I hope it is clear for you, my dear students. Now, what are the features of the multimedia? As I told you, I am not going to touch all the part, but just I am giving a small introduction about the features of the authoring tool. So, editing features are there. I am just going to highlight the main point. Some of the basic features of the multimedia authoring tools are editing features, organizing features, then we have a visual programming features, then programming features,
documentation features, interactive features, playback features, supporting video for Windows features, hypertext features. Already I told hypertext क्या होता है in the last video. Cross platform capability, runtime player for the distribution, internet playability. So these are the basic features of the multimedia authoring tools. So I just touched the heading because already I covered this topic in the last video. So my main concern to prepare this video is to give a more emphasis on the classification of multimedia authoring tools. So now dear students, we are going to see the classification of multimedia authoring tools. So what are the classification we have? Under the multimedia authoring tools, we are going to be see one by one here. So first one is called card or page based authoring tools. Card और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स. इस चीज़ को समझने के लिए आप जस्ट एक किताब को अपने पास में रखिए, एक किताब की ओर अपना ध्यान को लेकर जाइए कि एक किताब, एक बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं. ठीक उसी तरह से आप मान के चलिए कि आपके पास स्टैक ऑफ कार्ड है. कार्ड मतलब समझते हैं ना, जो प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं. स्टैक मतलब क्या होता है? स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसमें हमने एक एक कार्ड को हमने रख करके एक मतलब पाइल बना चुका है. मतलब एक मान के चलिए हमने उसको इकट्ठा करके रखा है. ठीक है. तो जिस तरह से हमारा बुक में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं 1000 पेजेस, 1500 पेजेस, 2000 पेजेस होते हैं, 3000 पेजेस होते हैं, ठीक उसी तरह से स्टैक ऑफ कार्ड्स मतलब एक स्टैक में, स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है. तो वहाँ पर हमने नंबर ऑफ कार्ड्स को उस स्टैक में हमने स्टोर करके रखा है. अब इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा. कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स ये कहता है कि एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, देखिए इसमें एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ बुक, पेजेस ऑफ अ बुक और स्टैक ऑफ कार्ड्स. यानी कि इन कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स? मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ. यानी कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज जस्ट लाइक अ पेजेस ऑफ अ बुक और कार्ड ऑफ अ स्टैक्स. समझ रहे हैं ना? जिस तरह से हमें किताब में पेजेस होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग पेज 1 कब वहाँ और पेज 2 कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी टॉपिक कहाँ पर आनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे में हम उसको अरेंज करके रखते हैं एंड फाइनली हम लोग बोलते हैं ये हमारा किताब है. ठीक उसी तरह से हमारा कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स क्या होता है? तो मल्टीमीडिया, हमारे पास मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वी हैव अ 5 बेसिक एलिमेंट्स इन मल्टीमीडिया. So what are the 5 basic elements? Image, text, audio, video and animation. So ये 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम मल्टीमीडिया के जो 5 बेसिक एलिमेंट्स को मैं जिस तरह से पेजेस को हमने किताब में अरेंज करते हैं या कार्ड को हमने स्टैक में अरेंज करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स और उसकी एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं उसी फॉर्म में बाय यूजिंग दिस कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स. सो कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के मदद से हम लोग मल्टीमीडिया एलिमेंट को एक प्रॉपर वे में हम लोग उसको अरेंज करते हैं. इन बुक और स्टैक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस और कार्ड्स अवेलेबल. एज आई टोल्ड यू कि हम किताब में या कार्ड, स्टैक ऑफ कार्ड में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स उसमें अवेलेबल होते हैं. द सेम वे अगर हमारे पास एक ऐसा मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना है और सभी को हमें इंडिविजुअली हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हम उस केस में हम इस तरह का कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं. मेरी बात को ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. पेज और कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स एक ऐसी ऑथरिंग टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग मल्टीमीडिया
प्रोजेक्ट को बना पाते हैं। यानी कि इस पेज और कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के मदद से हम इस तरह का मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट फाइल को हम बना पाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो और हमें इच एलिमेंट्स को हमें इंडिविजुअली दिखाना पड़े, तब हम इस तरह का टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेज और कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। अब इस बात को आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि दिस टूल्स बेस्ट used when bulk of your content consists of elements that can be viewed individually. As I told you, इस तरह का जो टूल्स होते हैं हमारे उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पर हम बल्क ऑफ कंटेंट हमारे पास है और एलिमेंट है, उसको हमें इंडिविजुअली व्यू करवाना है, तो हम पेज और कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है पेजेस ऑफ अ बुक, यानी कि एक किताब की हर पेजेस को अगर हमें दिखाना है तो इंडिविजुअली हम उसको दिखा सकते हैं। द सेम वे आई हैव अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट and each file in the multimedia project I want to be display individually by using this card or page based authoring tools. I hope it is clear for you now. Next we have, you can jump from one page to another page because all pages are interrelated. Yes, in page based or card based authoring tools we are able to be jump from one page to another page. That means we are able to be jump from one file of the multimedia project to other file because all the files are interrelated in the multimedia project. In the in this authoring tool system, you can organize pages or card in the sequence manner. Yes, इसमें क्या होता है ऑथरिंग टूल्स में, हम लोग जो हमारा प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स उसको मैंने सीक्वेंस ऑर्डर में प्रॉपर वे में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एवरी पेजेस ऑफ द बुक में कंटेन मेनी मीडिया एलिमेंट लाइक साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। एज आई टोल्ड यू, these are the basic elements or components of the multimedia, and these elements must be contained in every pages of the multimedia project. And if you want to be display this each element individually, then we have to display in the form of page wise because all the pages of a book are interrelated. ठीक है, one page have a hyperlink to another page that comes at a such later stage. By clicking on the same, you will might have effectively skipped several pages in between. So hyperlink क्या होता है? Hyperlink is one of the such type of a link which take you to another web page or another page once you click on the hyperlink. So hyperlink क्या होता है? जहाँ पर हमने ये hyperlink हम अपने प्रोजेक्ट में देंगे, तो अगर हमारा डेवलपर उस पर क्लिक करेगा तो उस पेज से वो आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करेगा और वो दूसरे स्क्रीन पर या दूसरे वेब पेज पर आपको लेकर चला जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक. So some of the example of the card or page based authoring tools are HyperCard. So that is work with the Mac operating system, that is called Apple. Toolbook, that is Windows operating system. PowerPoint, Windows operating system. SuperCard, again Mac, that is Apple operating system. Clear? So these are the example of the card or page based authoring tools. Now advantage of card or page based authoring tools. Some of the following advantage of card or page based authoring tools are easy to understand. पहला point, समझने में आसान होता है. One screen is equal to one card or one page. As I told you, one screen is equal to one card or one page. That means one screen is equal to one page of a multimedia project. Next we have easy to use, as this tool provide template, because this tool provide template so that it's easy to be use or work with it. Short
development time, and it take very short time for the development. So these are the basic advantages of card or page based authoring tools. Disadvantage: some of the basic disadvantages of the card or page based authoring tools are: some run only on one platform. This is one of the biggest disadvantage of the card or page based authoring tools. That means in one platform only it will work. If you change the platform, it will not work out. That means in one computer it will work perfectly, but you change the computer and play the same multimedia file, it will not work perfectly, because it's a platform dependency. It's not a independency, platform dependency. Tools not as powerful as equivalent standalone. That means जो tools ये जो होते हैं कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, ये जो टूल्स है वो पावरफुल टूल्स नहीं होते हैं. वाई? बिकॉज इट डज नॉट रन स्टैंड अलोन. यानी कि ये टूल्स को प्ले करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें अदर सम सपोर्टिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. सो इट्स नॉट अ पावरफुल टूल्स. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट पेज और कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन ऑथरिंग टूल्स. अब हम लोग देखने जा रहे हैं आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन ऑथरिंग टूल्स. सो आइकन बेस्ड, द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आइकन, यानी कि आइकन यानी कि जो भी चीज़ दिख रहा है हमें विजुअली उसको हम समझ सकते हैं. आइकन से हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, हमारे पास मतलब क्या है, एक नया हमारे पास एक स्मार्टफोन आ गया और हमें उसको ऑपरेट करने के कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा मच, लेकिन आइकन उसमें दिया हुआ है, उससे हमको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि हाँ इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है ना. ठीक वही चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं. तो आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन ऑथरिंग टूल्स ये क्या होता है? आइकन बेस्ड टूल्स गिव अ विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच. डे स्टूडेंट्स, इट गिव अ विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच. एक ऐसा अप्रोच को देता है, विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच को ये देता है. समझ रहे हैं ना. इट गिव्स अ विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटिंग मल्टीमीडिया. सो इफ यू वांट टू बी do a multimedia project, and if you want to give a visualization in the multimedia project, then we have to go with icon based or event driven authoring tools, because by using these tools we are able to give visual programming approach to the multimedia presentation. So multimedia presentation को visual programming approach हमें देना है, then we have to go with icon based or event driven authoring tools. ठीक है. Second point says that first you build a structure or flowchart of event. अब हमें क्या कर रहा है इस केस में, हमें क्या करना है, we have to build a structure or flowchart of events. इवेंट्स का स्ट्रक्चर या फ्लोचार्ट हमको बिल्ड करना है. टास्क एंड डिसीजन बाय ड्रैगिंग. टास्क एंड डिसीजन, टास्क क्या है, डिसीजन क्या है, ड्रैगिंग एप्रोप्रिएट आइकन फ्रॉम द लाइब्रेरी. यानी कि हमें हर चीज़ का एक आइकन को हमें वहाँ पर प्लेस करके दिखाना है. दैट इज़ कॉल्ड विजुअल अप्रोच. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल अप्रोच बोलते हैं. तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट में हमको देखते हैं ना, सबका बहुत सारे सिंबल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड ईच सिंबल हैविंग देयर ओन मीनिंग एंड ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द सेम वे in icon based or event driven authoring tools, we are using the concept of the flow chart. We have to prepare a flow chart for the events, and for that every flow chart and for that every event we are going to be put the icons from the library, and by using this icon it's make visual approach. समझ रहे हैं ना, ये visual approach हमें देता है. जैसे each icon does a specific task from the other. क्लियर मेंशन कर दिया, each icon does a specific task and different from others. For example, अगर play icon है तो play icon will play the media file. It will not stop the media file, because play icon having a specific task and that task is called to play the media file.
इस तरह से हमारा यहाँ पर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले अ सॉन्ग, open an image, these are the icon. So play icon will use to play the file, open icon will help you to open the file. So if you want to be design a multimedia project where you want to be give more visual programming approach, then we must go through the icon based or event driven authoring tools, because in this authoring tools we have to build a flowchart for every event and task and decision by dragging appropriate icon from the library. That means every events we have to prepare the flowchart, and for every task and decision we have to give the icons from the library, and because each icon have a specific task and specific features which are different from others. ठीक है, so that is called icon based and event driven authoring tools. Flowchart क्या होता है? The flowchart is graphically display project logic. Flowchart क्या है? It's used to display the project logic graphically. एक ग्राफ के द्वारा प्रोजेक्ट के लॉजिक को पूरा हम फ्लोचार्ट के तहत हम लोग दिखा पाते हैं. When the structure is built, जब हमारा स्ट्रक्चर बिल्ट हो जाता है, then you can add your content. Once the structure is built, then we are able to be add our content, text, graphics, animation, video, movie and sound. So once our structure is built, that means we completed the flow chart, then we are going to be add our content in form of multimedia element. So we are able to be add our content like text, graphics, animation, videos and audios. Non-technical multimedia authors can also build sophisticated application without scripting using icon based authoring tools. So my dear students, these are icon based or event driven authoring tools. So आप इस बात में ध्यान इसमें ये रखना है कि आप एक ऐसा मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसमें आप विजुअल अप्रोच ज़्यादा देना चाहते हैं. दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी विजुअली seen by some icons, then we must go with the icon based event driven authoring tools, because by in this authoring tools help us to put all the event in a flowchart by using some icons, and each icons having a specific task and specific features and which are different from others. ठीक है ना. सो इस तरह से हमारा ऑथरिंग टूल्स काम करता है और इसकी एक खासियत है. ठीक है. सो नेक्स्ट, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन ऑथरिंग टूल्स. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल? ऑथरवेयर प्रोफेशनल, ये क्या है? हमारा आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल्स है. ऑथरवेयर प्रोफेशनल जो हमारा मैक और विंडो दोनों में ये हमारा काम करता है. आइकन ऑथर दैट इज ओनली फॉर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अभी हम लोग कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस टाइप का ऑथरिंग टूल्स हमें उस जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया में जहाँ पर हमें हर चीज़ को एक आइकन के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है. यानी कि हमारे 5 और मल्टीमीडिया एलिमेंट से कंपोनेंट से उसको हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको हम एक विजुअल अप्रोच देना चाहते हैं, तो हम आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की मदद से हम एक कर सकते हैं. क्योंकि इसमें जो भी हम लोग करते हैं, हम एक फ्लोचार्ट को सबसे पहले बिल्ड करते हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, उसको हम एक आइकन के द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन द स्ट्रक्चर इज बिल्ट, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन एंड कैन ऐड योर कंटेंट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, मूवी एंड साउंड. So once the structure is built, then we are able to be add the multimedia elements. ठीक है. और flowchart क्या होता है? Flowchart is nothing but it's a project logic
जिसको हम ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। सो फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट लॉजिक, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट लॉजिक अंडर द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आइकन बेस्ड और इवेंट ड्राइवन ऑथरिंग टूल्स था, जिसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया ऑथर वेयर प्रोफेशनल है, आइकन ऑथर है। अब कुछ इसका एडवांटेज है उसको हम लोग देखेंगे। एडवांटेज ऑफ सम ऑफ द बेसिक एडवांटेज ऑफ अ आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल्स आर क्लियर स्ट्रक्चर, यस, बिकॉज फॉर in icon based authoring tools, for every event we first built the flow chart. So that means it's having a clear structure for all the event. Easy editing and updating, yes, when we have a clear structure, when we have a clear flow chart for all our project, then definitely it's easy to understand, edit and update, ठीक है। Next we have disadvantage of a icon based authoring tools. So difficult to learn, yes, because every events we are going to represent by the flowchart, and flowchart itself, it's a one important concept, because in the flowchart we are going to be use many symbols and icons. So before that we must have some idea for that. So it's little difficult to learn and it's expensive in nature. So these are the two basic disadvantages under the icon based event driven authoring tools. My dear students, I hope यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक जो मैंने दो तरह का ऑथरिंग टूल्स अभी आपके सामने रखा है, कवर किया है। अब हम लोग थर्ड टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स हम लोग देखेंगे। सो थर्ड टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल्स हमारा क्या होता है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स होता है हमारा। सो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा ऑथरिंग टूल्स अगर जिसके द्वारा हम टाइम को स्पेसिफिक देते हैं, यानी कि टाइम को महत्व देते हैं, यानी कि हमें एक ऐसा मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है जहाँ पर हमें टाइम बाउंडेशन है, समझ रहे हैं ना, टाइम को हमें वेटेज देना है। तो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स अलाउ द डिजाइनर टू अरेंज वेरियस एलिमेंट्स एंड इवेंट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। यानी कि टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स क्या होता है हमारा, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हमारा अलाउ करता है डिजाइनर को टू अरेंज वेरियस एलिमेंट, समझ रहे हैं ना, वेरियस एलिमेंट को मतलब प्रोजेक्ट में डालने के लिए वो अलाउ करता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि हमें यहाँ पर टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स में हमें टाइम को महत्व देकर चलना है। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स में हमें टाइम को महत्व देकर चलना है। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स क्या करता है, हमें डिजाइनर को मदद करता है कि जितने भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं उसको आप अपने प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड विथ टाइमलाइन, समझ रहे हैं, सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड विथ टाइमलाइन, और टाइमलाइन से वेल डिफाइंड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हमारा एक ऐसा ऑथरिंग टूल्स है जो हमारा टाइम को वेटेज देता है। यानी कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट अगर हमें काम बनाना है तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में जितने भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ऑल द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स शुड बी ए कॉम्पेन विथ और एसोसिएटेड विद द वेल डिफाइंड टाइमलाइन, ठीक है, वो टाइमलाइन के साथ वो जुड़ा रहता है। और ये क्या करता है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, ये मदद करता है डिजाइनर को और अलाउ करता है डिजाइनर को कि जितने भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं जिसको टाइम के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। बाय टाइमलाइन वी सिंपली मीन द पैसेज ऑफ टाइम। बाय टाइमलाइन, टाइमलाइन के यहाँ पर मतलब क्या है, सिंपली मीन्स द पासेज ऑफ टाइम। यानी कि टाइमलाइन देखते हैं ना, जब हम लोग कोई भी
चीज़ वीडियो बनाते हैं या कुछ भी चीज़ को हम लोग क्रॉपिंग करते हैं या एडिटिंग करते हैं वीडियो का, तो ऊपर में एक टाइमलाइन आता है। तो टाइमलाइन क्या कहता है, दैट इज शोज द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि एक सेकंड में क्या कितना फ्रेम वर्क किया, दूसरे सेकंड में कितना फ्रेम पर काम किया, तीसरे फ्रेम में कितना फ्रेम पर मेरा काम हुआ, दैट इज कॉल्ड पासेज ऑफ टाइम। द टाइमलाइन मीन्स द पासेज ऑफ टाइम। एज द टाइम एडवांस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कह रहा है कि एज द टाइम एडवांस फ्रॉम starting point of the project, the event begin to occur one after another. My dear students, as we have seen that if you play any video in your cell phone, then the timeline will be run at the bottom, and as the timeline will be goes on, your frame of the video will be run one after another. एक के बाद एक उसमें रन करना शुरू कर देता है। सो दैट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन द टाइम, यानी कि हम लोग अगर किसी पार्टिकुलर फ्रेम में किसी पार्टिकुलर इमेज को अगर हम देखना चाहते हैं तो उस पार्टिकुलर टाइम लाइन पर हम लोग या पार्टिकुलर 2 सेकेंड या 1 सेकेंड या 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा या पर हम जाकर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उस इमेज को हम लोग देख सकते हैं या वो वीडियो को हम लोग सुन सकते हैं या ऑडियो को हम लोग सुन सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द टाइम एडवांस, that means as the time passes from a starting point of the project, event begin to occur one after another। यही कहने का मतलब है कि एक के बाद दूसरा इवेंट दिखाना शुरू कर देता है जैसे हमारा टाइम रन करने लगता है। ठीक है, तो इवेंट में इंक्लूड मीडिया फाइल, प्लेबैक एज वेल एज ट्रांजिशन फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू अनदर। वही चीज़ हो गया, इवेंट यहाँ पर क्या चीज़ डील कर रहा है, इट्स डील विद द प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं ना। सो अगर यहाँ पर कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमें टाइमलाइन को दिखाना है, टाइमिंग के साथ काम करना है, तो हमें ये टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हमारे डिज़ाइनर को या डेवलपर को ये मदद करता है कि जितने भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में जितने भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को आपने इस्तेमाल किया है सभी को टाइमलाइन के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन इज़ नथिंग बट इट्स अ पासेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जो पास हो रहा है उसी को हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। जैसे कि हम लोग मल्टीमीडिया फाइल को हम रन करते हैं तो जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है उसी तरह से हमारा इवेंट भी दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो यही कहता है हमारा टाइमलाइन ऑथरिंग टूल्स। तो कहता है स्पीड एट विच दिस ट्रांजिशन अकर कैन ऑल्सो बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड। अब इसमें ये भी होता है कि अगर मल्टीमीडिया फाइल हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन द टाइमलाइन ऑथरिंग टूल्स, देन वी हैव दिस फैसिलिटी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन, यानी कि हम उस स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिस स्पीड से हमारा वीडियो या ट्रांजिशन को हम दिखाना चाहें। सो स्पीड एट विच द ट्रांजिशन अकर्स और कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यही कहना चाह रहा है कि हम लोग टाइमलाइन और टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के मदद से हम अपने प्रोजेक्ट की जो भी इवेंट है जो टाइमलाइन में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उसको हम और उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अनुसार, फास्ट या स्लो उसको हम कर सकते हैं। These tools are best to use for those projects wherein the information flow can be directed from beginning to end, much like the movie. So this type of authoring tools are mostly used in the field of the movie making, यानी कि अगर आपको मूवी मेकिंग बनाना मूवी बनाना है तो उसके लिए आपको टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। इसमें हमारा ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे क्या होता है इसमें कि हमारा क्या है, अगर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हम बता रहे हैं, जैसे हमारा एक मूवी हमारा एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की मदद से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारा हर इवेंट हर प्रोग्राम को हम टाइम के साथ रिलेट करेंगे और हम उसको शो करेंगे और दिखा करके हम ख़त्म कर सकते हैं। वेयर इन द इंफॉर्मेशन कैन बी फ्लो कैन बी डायरेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, मच लाइक द
मूवी, मच लाइक द मूवी। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना, टाइम स्लो हो गया, उसके बाद दिखा रहा है इतने हाफ एन आवर में इतना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में इतना कंप्लीट होगा, तो हमारा सब कुछ टाइम से रिलेटेड रहता है। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट को हमने टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। Some of the example of the time based authoring tools are Micromedia Director. So Micromedia Director ये हमारा क्या है? These are the example of the time based authoring tools. That means these are the software. ये क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स का। Micromedia Flash, by using this Micromedia Flash we are able to be prepare the movie or any short video or clip, in that we are able to put the timeline. So these are the some of the important example of the time based authoring tools. The same way I told you for the this icon based authoring tools. So icon based authoring tools में these are the two basic software, so use for that. The same way I told you for the this card based or page based authoring tools. So these are the example for the card or page based authoring tools. So these are the basic software. So in the time based authoring tools we have a two basic software, that is called Micromedia Director and Micromedia Flash. By using these two software we are able to prepare the project based on time based. ठीक है? So that is the advantage of using time based authoring tools. So what is the basic advantage of the time based authoring tools? Good for creating animation. So time based authoring tools is good for creating any animation movie. Branching user control interactive facilities. So branching user control interactivity facilities. So these are the area, these are the things which we are helping in the time based authoring tools. So what are the disadvantages for this time based authoring tools? It's expensive, large file size, definitely we are going to create a movie, then definitely it will be a large file size. Then steep learning curve to understand various features. So these are the disadvantages for the time based authoring tools. My dear students, I hope it is clear for you. मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स सपोर्ट इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स इज सच अ टूल्स विच सपोर्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट किस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट है उस पर ये डिपेंड करता है। सो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ रहे हैं ना, आप समझिएगा इस चीज़ को। ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स सपोर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट के इन्वायरमेंट पर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हम लोग काम करते हैं। सो ऑब्जेक्ट का दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है एट्रीब्यूट एंड दूसरा हमारा है बिहेवियर। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट का माना जाता है और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के सपोर्ट, मतलब कि उसकी सपोर्ट पर ही हम ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहला की बात करते हैं, इसमें स्टेट और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो स्टेट और एट्रीब्यूट्स रेफर टू द बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स of an object. So attributes is nothing but it's a built in characteristics of an object. एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर में बिल्ट इन है, यानी कि वो उसके अंदर का गुण खुद का उसके बिल्ट इन, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर कलर टीवी, हम कलर टीवी को कंसिडर करते हैं तो उसका बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? कलर रिसीवर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जितना होगा उतना ही तक हम कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। पिक्चर कंट्रोल, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज इट्स अ बिल्ट इन कैरेक्टर। 120 चैनल, नंबर ऑफ चैनल्स जितना बिल्ट इन है उतना ही हम लोग देख सकते हैं, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स बट नथिंग, इट्स अ एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
I hope now it's clear for you. So object based authoring tools talks based on the object, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स हमारा क्या है, इट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. देन ऑब्जेक्ट हैविंग टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, दैट इज बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बिल्ट इन है, जो उसमें बिल्ट है, उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते, जो ऑलरेडी उसमें पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, कलर टीवी को हम लोग ले रहे हैं, तो कलर टीवी का बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर रिसीवर, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. 128 चैनल, यानी कि 8 टीवी 128 चैनल को ही कवर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है, उसके आगे उसका क्षमता नहीं है, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. बिहेवियर और ऑपरेशन, बिहेवियर और ऑपरेशन दो अदर टॉपिक हैं हमारे अंदर में, जिसको हम बताना चाहेंगे. बिहेवियर को हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं. तो बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू इट्स एक्शन, यानी कि बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट की एक्शन को रेफर करता है, यानी कि उसकी एक्शन को बताता है. जिस तरह से हमने एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उसी तरह से बिहेवियर उसकी एक्शन को बताता है. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कलर टीवी का, उसी एग्जाम्पल को फिर से हम आपके सामने रखना चाहते हैं. तो बिहेवियर और ऑपरेशन, यानी कि बिहेवियर और ऑपरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर टू इट्स एक्शन, उसका क्या एक्शन होता है. अगर हमने आपको मतलब पिंच किया तो आपका क्या एक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर और ऑपरेशन. तो सेम वे आई हैव जस्ट कंसिडर एग्जाम्पल एज अ टीवी, अगेन आई एम कंसिडरिंग द एग्जाम्पल एज अ टीवी. सो टीवी को मैंने कंसिडर किया, तो जब हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर में क्या परिवर्तन आया, टीवी के अंदर में, टीवी विल बी गेट स्टार्ट. स्विच ऑफ किया, जो मूवी चल रही थी वो हमारा बंद हो गया. सो दैट इज एक्शन, जो मैंने उसके अंदर में कुछ चेंजेस को किया, वो हमारा उसका एक्शन देखने को मिला. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले पिक्चर एंड शॉर्ट फॉर्म, यही हमारा एक्शन है. सो बिहेवियर दैट मीन्स रेफर टू द एक्शन, एट्रीब्यूट्स रेफर टू द बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो attributes refer to the built-in characteristics of the object and behavior refers to the action performed by the object. Clear? So object based authoring tools is such type of authoring tools which based on the object characteristics, जो object की characteristics पर हमारा क्या करता है, वो based करता है. So my dear students, in this video lecture I successfully covered the classification of multimedia authoring tools with the basic definition of the multimedia authoring tools and its features. मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से जो भी आपको डाउट हुई थी या हो रही थी, इस वीडियो लेक्चर देखने के द्वारा आपको समाप्त हो सकता है. सो दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन. ठीक है. सो आप इसमें रिवीजन के लिए मैं वीडियो को बनाया है, आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए. इफ यू अगेन हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू बी कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.